चलिए। तो बेटा जो लोग पहली बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं, जो पहले भी कर लिए है, ठीक है, अच्छा है। एक मिनट इसको चलिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा हम लोग सबसे पहला जो पढ़ने वाले हैं दैट इज अबाउट अ साइंटिस्ट नोन एज बर्जीलियस। जो लोग नोट्स नहीं बनाए हैं इनका बना लीजिए, ठीक है। बर्जीलियस। Now he is the first scientist to talk about organic chemistry. तो Berzelius first scientist organic chemistry बेटा, first scientist organic chemistry introduction, first scientist to talk about organic compounds or organic chemistry, organic compounds. He is the very first scientist. इसके पहले कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ नहीं बोलता था, लोग कंपाउंड बोला करते थे। But he is the first scientist who said there are two types of compound, organic compounds and inorganic compound. He defined organic compound as, according to Berzelius, compound which are synthesized by living organisms are called organic compound. According to Berzelius, according to whom? Berzelius. बेटा ठीक है। According to Berzelius, compound synthesized by living organism. According to Berzelius, compound synthesized by living organisms. Compound which are synthesized by living organisms are called organic compound. Those compound which are synthesized by living organisms, for example all the proteins, they will be called organic compound. Lactic acid, organic compounds. विनेगर, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और कुछ एग्जाम्पल बताइए बेटा। यूरिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत बढ़िया। तो ऑल दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। टार्टरिक एसिड, उसके बाद आपका ऑक्सैलिक एसिड, एटीपी, ठीक है। ऑल दीज विल बी कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। डीएनए, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ऑल दीज विल बी कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। He also proposed, अच्छा हाँ, he also coined the term protein. He is the scientist who coined the term protein. लिख सकते हैं। He coined the term protein. Protein इन्होंने ही term coin किया। Next, he proposed theory of vitalism. He proposed theory of vitalism. He proposed theory of vitalism. अब ये थ्योरी ऑफ वाइटलिज्म क्या है, समझेंगे बात को। Berzelius felt that organic compound they are synthesized inside living organism. मान लेते ये ह्यूमन के अंदर आरबीसी क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो Berzelius said, he said this RBC can only be synthesized inside living organisms and can never be synthesized outside living organisms. For example, यूरिया। यूरिया यूरिन में होता है ना। अकॉर्डिंग टू Berzelius, दिस कैन नेवर एवर बी synthesized outside living organisms. This theory of Berzelius was called theory of vitalism. Why he considered that organic compound can only be synthesized inside living organism? Because he felt that the synthesis of organic compound requires some supernatural force which are present inside living organisms.
Berzelius thought that all living organisms have some supernatural force inside them and those are responsible for synthesis of organic compound. ठीक है, तो थ्योरी ऑफ वाइटलिज्म के बारे में लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्स डिवाइन पावर। सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, लिख लीजिए बेटा, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्स डिवाइन पावर या सुपरनैचुरल फोर्स, डिवाइन पावर which are present inside, which are present inside living organism, which are present inside living organism. सॉरी, हाँ बेटा बोलिए। इसके पहले क्या पढ़ा है मतलब? हाँ बेटा, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्स डिवाइन पावर विच आर प्रेजेंट इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आगे लिखेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बर्जीलियस ने दो बातें कही। एक तो कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए डिवाइन पावर लगेगा, फिर आगे कहते हैं कि आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बन सकते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग बेटा ओसी लिखेंगे, कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड, कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म, आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ बेटा, ओसी तो अभी बताया, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक हाँ बेटा वर्जीलियस, हाँ अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस दैट इज थ्योरी ऑफ वाइटलिज्म, अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस दैट इज थ्योरी ऑफ वाइटलिज्म। नेक्स्ट, फिर एक आदमी आए, ठीक है, ये आए, इनका पूरा नाम है एफ होलर, एफ डॉट होलर। पूरा नाम नहीं, सॉरी शॉर्ट नाम है, पूरा नाम फ्रेडरिच होलर है। आप बेटा जल्दी जल्दी लिखिए बेटा, लास्ट लाइन लिखिए, ओसी कैन नॉट बी सिंथेसाइज आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलो, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलिए, अब एफ होलर ये आते हैं और ये क्या करते हैं, बर्जीलियस के थ्योरी ऑफ वाइटलिज्म को बेटा डिस्कार्ड कर देते हैं, गलत प्रूफ कर देते हैं। हाँ तो ठीक, तो आपका ब्लिंक कर रहा है, मेरा तो गायब ही हो गया। चल आप ठीक होगा बेटा, एफ होलर, एफ डॉट होलर, he synthesized the first organic compound outside living organism। बेटा जैसे जैसे बोल रहे ना वैसे वैसे नोट डाउन करते रहा कीजिएगा। एफ डॉट होलर सिंथेसाइज फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म। एफ डॉट होलर synthesize first organic compound outside living organism। ठीक है, एफ डॉट होलर synthesize first organic compound outside living organism। and what was this organic compound? यूरिया। बहुत बढ़िया बेटा, यूरिया। ये यूरिया का स्ट्रक्चर है, कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ये वाला नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। आप लोग इसको इस तरीके से बना सकते, NH2। हाँ बेटा, ये यूरिया का स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड O NH2, ये भी बना सकते हैं और ऊपर वाला भी आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे।
आइदर ऑफ द टू आप ड्रॉ कर सकते हैं। क्या बेटा? यूरिया। क्या? नाइट्रोजन है बेटा। ड्रॉ एन तो लिख रखे, देखिए एन है तो यहाँ लिखे ना, ये देख ले सकते, ये भी एन है बेटा, ब्लू वाला नाइट्रोजन। So urea is the first organic compound which was synthesized outside living organism. Now, many scientists, including Berzelius, said that urea has been synthesized outside living organism, but they said that while conducting experiment, the divine power may have been transferred into the test tube, by touch. अब कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसको टच तो करेंगे, अब ऐसा तो नहीं है कि इनविजिबल हैंड होगा। तो बर्जीलियस और बहुत सारे बाकी साइंटिस्ट ये बोले कि जब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया होगा तो उस समय ड्यू टू ह्यूमन टच आपका जो डिवाइन पावर होगा वो टेस्ट ट्यूब में चला गया होगा। मतलब दे वर नॉट, हाँ बेटा, they were not ready to accept that organic compound can be synthesized outside living organism, उनका मानना ये था। बट एक साइंटिस्ट बर्जीलियस ने यूरिया सिंथेसाइज किया, उसके बाद कुछ और साइंटिस्ट आए, उन्होंने कुछ और ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में सिंथेसाइज कर दिया। अच्छा हाँ, बाय द वे ये एक मॉलिक्यूल है, ये ब्लिंक कर रहा होगा बेटा थोड़ा, ठीक है, आज हैंग कर रहा है कंप्यूटर, ठीक है, बट देखिए, हाँ ठीक है, चलिए अब ठीक हो गया। ये बेटा दिस इज एक्चुअली अमोनियम साइनेट। तो आगे लिखेंगे, आगे पहले लिख लीजिए, होलर obtained urea from ammonium cyanate। ये हाँ बेटा, अमोनियम साइनेट फर्टिलाइजर में यूज होता है। ये है बेटा अमोनियम साइनेट का स्ट्रक्चर, आप लोग इस तरीके से लिख सकते NH4 प्लस CNO-, इस तरीके से लिख सकते हैं आप, वरना आप ये लोग ये वाला स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं अच्छे से, ठीक है। अमोनियम साइनेट इस मॉलिक्यूल से यूरिया बना, ये दोनों एक ही मॉलिक्यूल है बेटा, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये दो मॉलिक्यूल नहीं है, ये कंप्लीट एक मॉलिक्यूल है। तो होलर ने इसको हीट किया था तो यूरिया मिला था उनको। चलिए लिख लिए होंगे, होलर ऑब्टेन यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट, स्ट्रक्चर बन गया। क्या बेटा? आयनिक बॉन्ड है ना बेटा इनके बीच में, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, प्लस विल अट्रैक्ट व्हाट बेटा? माइनस, ठीक है। चलिए बेटा ऑक्सीजन माइनस चार्ज है, ऑक्सीजन विल नीड डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन माइनस नीड सिंगल बॉन्ड। न्यूट्रल ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड लगता है, डबल बॉन्ड लगता है, O माइनस को सिंगल बॉन्ड लगता है। चलिए नेक्स्ट। अब जब कुछ साइंटिस्ट क्या है, अभी भी बात को मान ही नहीं रहे थे, उनका अभी भी कहना था नहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है लैब में नहीं बन सकता है। तो फिर ये एक साइंटिस्ट है कोल्ब और दूसरा साइंटिस्ट है बर्थेलो, इन्होंने क्या किया, अरे ठीक है अब तो रुक गया ना,
बीच में जब रोटेट करेगा तो करेगा। ये दो साइंटिस्ट ने क्या किया, और दो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए, इसका नाम कॉमन नेम है विनेगर, ठीक है। ये और ऐसे आप बोलते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो कोल्ब सिंथेसाइज एसिटिक एसिड एंड बर्थेलो सिंथेसाइज्ड मीथेन। ये मीथेन है बेटा, मीथेन, ठीक है। तो लिखेंगे कोल्ब सिंथेसाइज्ड एसिटिक एसिड एंड बर्थेलो सिंथेसाइज्ड मीथेन इन आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये दो साइंटिस्ट ने और दो मॉलिक्यूल लैब में बना दिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बाहर बना दिए। अब सारे साइंटिस्ट ये बिलीव करने लगे थे, जो नहीं कर रहे थे ठीक है, कुछ लोग होता है ना लास्ट तक बिलीव नहीं करते, तो उनके बारे में छोड़ दीजिए, बट मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट नाउ दे वे कन्विंस्ड दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी सिंथेसाइज्ड आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म, और थ्योरी ऑफ वाइटलिज्म अब डिस्कार्ड कर दिया गया, और वो धीरे धीरे उसके बारे में लोग बात करना बंद कर दिए। समझ में आया बेटा? नेक्स्ट, ठीक है। अब देखो, जो इनिशियल डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था, वो तो बर्जीलियस ने दिया था। बर्जीलियस के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड और हाँ बेटा, ओल्डर डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्जीलियस ने बता रखा था कि कंपाउंड विच आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। बट अब क्या हुआ, अब तो बाहर भी बन रहे ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो अब डेफिनेशन को चेंज किया जाएगा। हाँ, तो लिखेंगे मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ना मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा बहुत सारे हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगा, ठीक है। कभी आपसे हायर क्लास में ये नहीं पूछा जाएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड डिफाइन कीजिए, बिकॉज देयर इज नो यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक बुक में कुछ मिलेगा, दूसरे में कुछ मिलेगा, एक साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग कुछ होगा, दूसरे साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग कुछ होगा। बट सबका ये मानना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, और कुछ अदर एलिमेंट होते हैं सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन, ईटीसी। मोस्टली कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, और कुछ और एलिमेंट होंगे, बट मोस्टली कार्बन, हाइड्रोजन, और मोस्टली कार्बन एंड हाइड्रोजन होता है। तो सबसे पहला बात है बेटा, अब ये लिखना नहीं है, अ सिंगल प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज नॉट बीन आइडेंटिफाइड बाय केमिस्ट्री कम्युनिटी। साइंटिस्ट लोग अभी तक नहीं बताया बेटा, नहीं लिखना है बेटा, नहीं लिखना है, अभी तो बोले। आईयूपीएसी कौन है बेटा, बता दे रहे, अभी छोटी सी बात है इनके बारे में। आईयूपीएसी कौन है बेटा? जैसे क्रिकेट का रूल आईसीसी बनाता है, फुटबॉल का रूल फीफा बनाता है, उसी तरीके से बेटा ओलंपिक का रूल एक ओसीसी है, ओलंपिक कमेटी होता है, वो बनाता है। उसी तरीके से केमिस्ट्री का रूल बेटा ये बनाता है, ठीक है। तो इसने भी बेटा कोई डेफिनेशन नहीं दिया है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग द बाउंड्रीज ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ब्लर्ड। मतलब कुछ कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसमें कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है कि वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। लिखना नहीं है, समझने की बात है। तो सबसे बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और इट्स डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब होता है उससे डिराइव किया हुआ, उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दीजिए। ऑरेंज को थोड़ा सा, ऑरेंज होता है बेटा, ऑरेंज जूस से थोड़ा सा मॉडिफाई करके बहुत सारे मॉकटेल आप बना सकते हैं, ठीक है। एप्पल को भी बेटा आप मॉडिफाई करके बहुत सारे उससे लेट से आप डेजर्ट बना सकते हैं। कुछ लोग फॉर एग्जांपल गाजर का हलवा बनता है, गाजर के बहुत सारे चीज़ आप बना सकते हैं, तो उसको डेरिवेटिव ऑफ गाजर बोला जाएगा या डेरिवेटिव ऑफ कैरेट बोला जाएगा। समझ में आया? खीर बेटा, अब बहुत सारा खीर में क्या होता है, राइस होता है,
दूध होता है और चीनी होता है, उसको खीर बोलते हैं। अब ये बताइए उसमें काजू डाल देंगे तो खीर रहेगा ना, तब भी उसको खीर बोला जाएगा। किशमिश डाल दीजिएगा तब भी वो खीर है, नारियल डाल दीजिएगा तब भी वो खीर है बेटा। मतलब डेरिवेटिव्स मीन्स मॉडिफाई किया हुआ फॉर्म। तो मेजर होगा कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, या उसको थोड़ा मॉडिफाई किया रहेगा। डेरिवेटिव्स का मतलब मॉडिफाइड फॉर्म होता है, ठीक है। तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और इट्स डेरिवेटिव इज सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अरे बिल्कुल, वो डेफिनेशन था, वो तो नोट कर लेना था अब तक। अरे अब ये बताना होगा बेटा, जल्दी जल्दी नोट कीजिए बेटा। ये तो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर क्या नोट करेंगे। आएंगे बेटा, बताएंगे, आगे चल के होगा, उसके बारे में डिटेल देखेंगे। चलिए चलिए, हो गया। चलिए, अब ये एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दिस इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब इसको ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। ये बेटा आपका हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन है। ये जो अभी बात चल रहा था ना, जो कोरोना के लिए यूज होने वाला था, ये आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए मोस्टली कार्बन है ना, बहुत सारे कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है। तो मोस्टली कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, और कुछ और एटम्स होते हैं, सच नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन है बेटा, ठीक है। चलिए, ये एक और एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है बेटा विटामिन ए का। ये एग्जाम्पल है विटामिन ए का। हाँ बेटा, आ रहे बेटा, आएंगे आएंगे, सब वही बात करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखेंगे। ये बेटा इसमें आप देखेंगे मोस्टली कार्बन है, हाइड्रोजन है, और सिर्फ एक जगह ऑक्सीजन है। ब्लैक वाला कार्बन है, व्हाइट वाला हाइड्रोजन है, रेड वाला ऑक्सीजन है। ये विटामिन ए है। ये बेटा कैफीन है, दिस इज कैफीन। कॉफी में मिलेगा कैफीन, चॉकलेट में भी होता है, ठीक है। हाँ बहुत सही। ये बेटा नैप्थलीन है। नैप्थलीन याद है आप लोग को, कपड़ों में दिया जाता है। हाँ ठीक है, हाँ बाथरूम वगैरह में भी यूज करते हैं इसको हम लोग। तो ये नैप्थलीन हुआ, ठीक है। चलिए, ये बेटा सोप मॉलिक्यूल्स होते हैं, दीज आर, हाँ बेटा बहुत सही, ये सोप मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो बेटा व्हाट इज द कॉमन फीचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड? द कॉमन फीचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज दैट दे आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ कार्बन। उसमें कार्बन होता है। क्वेश्चन इज, हाँ बेटा, हाँ बेटा बिल्कुल सही, समझेंगे बात को। अब क्वेश्चन इज वाई कार्बन, टॉपिक लिखेंगे वाई कार्बन इज डोमिनेंट एलिमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। वाई कार्बन इज डोमिनेंट एलिमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, या मोस्ट कॉमन एलिमेंट या मोस्ट कॉमन एटम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन सबसे मोस्ट कॉमन क्यों है, तो समझो बेटा। हम लोग को ऑर्गेनिक कंपाउंड से बेटा बहुत सारे चीज़ बनाने हैं। आरबीसी बनाना है, डब्ल्यूबीसी बनाना है, डीएनए बनाना है, प्रोटीन बनाना है, मसल्स बनाने हैं, सब कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाना है। या वाई कार्बन इज मोस्ट डोमिनेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, मोस्ट डोमिनेंट एलिमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। वाई कार्बन इज मोस्ट डोमिनेंट एलिमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, समझेगा। तो कार्बन सबसे ज्यादा बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्यों है? बिकॉज कार्बन से जो मॉलिक्यूल बनता है वो स्टेबल होता है। अब आप समझिए, आपका डीएनए है, डीएनए अगर स्टेबल नहीं रहेगा तो बेटा फिर सेल्स स्टेबल नहीं होंगे। प्रोटीन अगर स्टेबल नहीं रहेगा तो फिर बेटा बॉडी जो होगा बहुत वीक होगा। फॉर एग्जांपल आप सोचिए, आपके हेयर्स कितने स्ट्रांग होते हैं, कभी हेयर्स को देखे ब्रेक करने से इतने, हाँ ठीक है, हेयर्स काफ़ी स्ट्रांग होता है।
बेटा एक वो आप लोग ना मकड़ी का जाला देखते होंगे, स्पाइडर का वेब देखते होंगे बेटा, आपको लगता है कि वो बड़ा वीक है, बहुत आसानी से ब्रेक कर जाता है, बेटा वो बहुत थिन होता है इसीलिए ब्रेक कर जाता है। अगर उसको बेटा आप अपने हेयर्स, अच्छा आपको पता है विच विल बी स्ट्रॉन्गर, आयरन और उसका स्पाइडर का वेब? तो बेटा अगर सेम, हाँ बहुत सही, सेम थिकनेस में स्पाइडर का वेब स्ट्रॉन्गर हो जाता है। अगर थिकनेस सेम कर दीजिएगा तो दैट विल बी स्ट्रॉन्गर। वो बायो ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा। तो कार्बन कार्बन, इनफैक्ट बेटा ग्राफीन एक कार्बन का कंपाउंड होता है, ग्राफीन। ये कार्बन का जो चेन होता है ना बेटा, डायमंड, डायमंड क्या है, कार्बन से बना है, दैट इज स्ट्रॉन्गर देन आयरन। तो why carbon is most dominant in organic compound? Because carbon carbon bond is very stable. As a result carbon can form long chain। डीएनए बेटा बहुत लॉन्ग होता है, पूरा डीएनए खोल दीजिएगा ना तो पूरा अर्थ का चक्कर लगा लेगा, सारे क्रोमोसोम खोल दीजिएगा आप तो अर्थ के चक्कर लगा लेगा। तो क्यों कार्बन बेटा मोस्ट कॉमन है? तो पहला रीजन है कार्बन कैन फॉर्म, कार्बन कैन फॉर्म, लिखिएगा, कार्बन कैन फॉर्म लॉन्ग चेन, स्टेबल लॉन्ग चेन, सॉरी कार्बन कैन फॉर्म स्टेबल, स्टेबल होगा या स्ट्रांग होगा, ठीक है, स्टेबल लॉन्ग चेन विथ इटसेल्फ, विथ इटसेल्फ। कार्बन आपस में लंबा चेन बना सकता है और वो स्टेबल होगा। दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज नोन एज, this property of carbon is known as, carbon can form long stable long chain with itself, comma, this property of carbon is known as, नहीं बेटा, self catenation property, catenation property। So what is catenation? Catenation is the ability of carbon to form long stable chain with itself। उसका जो एबिलिटी है आपस में एटम्स को जोड़कर लॉन्गर चेन बनाना, और वो स्ट्रांग होता है, स्टेबल होता है। इतना स्टेबल होता है बेटा कि सेम थिकनेस का अगर आयरन का रॉड होगा और सेम थिकनेस का कार्बन का रॉड होगा तो कार्बन का रॉड विल बी स्ट्रॉन्गर। ठीक है, नेक्स्ट, क्या बेटा, ग्रेफाइट? नहीं बेटा, ग्रेफाइट को आप ऐसे, ग्रेफाइट को आप ऐसे ब्रेक नहीं करते हो, ठीक है, ग्रेफाइट को आप ऐसे ब्रेक करते हो दो चेन के बीच में, ठीक है, ग्रेफाइट को आपने ऐसे ब्रेक किया, ऐसे ब्रेक नहीं होता है ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट के बेटा, ग्रेफाइट से हम लोग कार्बन के ग्राफीन से बेटा हम लोग वो बना रहे हैं एरोप्लेन, वो बना रहे क्या बोलते हैं आजकल, बुलेट प्रूफ जैकेट बनता है बेटा ग्राफीन से, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट लिखेंगे बेटा। अब हम लोग को समझना है कार्बन ये स्टेबल चेन क्यों बना पाया। इसका रीजन ये है बेटा, कार्बन कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। तो लिखेंगे रीजन बिहाइंड कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। रीजन बिहाइंड कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। तो पहला रीजन लिख लीजिए, स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। नंबर 2, कार्बन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड्स।
मतलब C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड L। कार्बन बेटा सिंगल बॉन्ड सिर्फ नहीं बना सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। आपस में डबल बॉन्ड बना सकता है, आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, बाकी एटम के साथ भी डबल बना सकता है, बाकी एटम के साथ भी ट्रिपल बना सकता है। थर्ड पॉइंट, कार्बन is tetravalent, forms 4 bond, हाइड्रोजन का बेटा नाइट्रोजन है बेटा, ये हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है। चलिए, हाइड्रोजन के साथ एक ही बॉन्ड बनाता है। चलिए नेक्स्ट, कार्बन इज टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट का मीन्स इट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स। कार्बन इज टेट्रावैलेंट मीन्स इट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स। ठीक है, अब ये पिक्चर क्या बता रहा है बेटा? ये पिक्चर ये बता रहा है कि जब स्टार्टिंग में इवोल्यूशन हुआ होगा उस समय हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सारे एटम्स में कार्बन को सिलेक्ट किया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। किसने सिलेक्ट किया? नेचर ने सिलेक्ट किया। Nature decided in favor of carbon because carbon can form long chain with itself. Carbon bond is stable, carbon double bond, carbon triple bond is possible, and carbon is tetravalent. Because of these reasons, nature selected carbon as the backbone of organic compound. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेटा, वो तो सारा पॉइंट लिखा दिए, बट यहां समझिए बेटा, ये आपका स्टार्च हुआ। ठीक है, स्टार्च हुआ जो चावल में होता है बेटा, राइस में होता है। इसको देखेंगे तो बेटा बहुत सारे लंबा चेन है, देख रहे कितने सारे कार्बन है, ब्लैक वाला सारा कार्बन है, रेड वाला ऑक्सीजन है, तो ये लॉन्ग चेन है, इसको स्टेबल होना होगा, कार्बन ही बेटा इसको स्टेबलाइज कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेटा, ये है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। ध्यान से देखेंगे टेट्रावैलेंसी से मीनिंग क्या है। जिसको बनाना है बेटा बना सकते ये मॉलिक्यूल। देखो कार्बन के बेटा 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में। ठीक है, ये अरे तो 2D बना लीजिए ना। ये है बेटा कार्बन के बॉन्ड्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। इस तरीके तो बना ही सकते बेटा, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। वीक नहीं होता है बेटा, कहाँ बोला आपको, इसने बोला बेटा वीक होता है। कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग, ऐसा नहीं है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड भी स्ट्रांग होता है। ठीक है, चलिए कोवेलेंट बॉन्ड को आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हुआ ना आयनिक बॉन्ड, ये इंटरमॉलिक्यूलर थोड़ी ना है। चलिए नेक्स्ट, ये बेटा टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन है। ठीक है बेटा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ में आ रहा है सबको? ये मॉलिक्यूल से बेटा शेयरिंग क्लियर होना चाहिए। शेयरिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है फिर इधर आ रहा है, समझ में आ रहा है? ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। बहुत बढ़िया, चलिए हाँ यहाँ भी दिख रहा ना, आना जाना करते रहेगा, ये दिख रहा तो
चलिए अब ध्यान से देखेंगे, ये ऊपर में कुछ अजीब सा बना है। ये ऊपर में क्या बना है बेटा, बताते हैं अभी। बेटा एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर होना होता है। एक बॉन्ड के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर होना होगा। कहाँ चला गया? ओह, अच्छा नहीं होगा ये। राइट क्लिक नहीं होगा। चलिए इसको देखिए बेटा अभी, फिर पॉज करवाते हैं। बेटा ये जो बॉन्ड है ना, ऐसा बॉन्ड को हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। ये बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। इस बॉन्ड को नाम सिग्मा बॉन्ड होगा। इस बॉन्ड का नाम होगा सिग्मा। सिग्मा का साइन ये होता है बेटा। दीज आर कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड्स। और ये वाला जो बॉन्ड होता है ना, अभी जो बनने वाला है ऊपर और नीचे से, हाँ बेटा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। दीज आर कॉल्ड पाई बॉन्ड्स। पाई, ये वही मैथ वाला पाई है आपका। दीज आर कॉल्ड पाई बॉन्ड्स। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर आपको और समझ में आएगा। ये बनाएंगे बेटा, ये बनाएंगे। ये है पाई बॉन्ड्स, दिस इज पाई बॉन्ड्स। ये आपका पाई बॉन्ड है, दिस इज पाई बॉन्ड। आप लोग इस तरीके से बनाएंगे। सी सी ग्रीन वाला हाइड्रोजन है, ठीक है, ग्रीन वाला हाइड्रोजन है। आ रहे बेटा, अब आप बोलेंगे बेटा यहाँ पर इतना वाइड है। अरे रुको यार, यहाँ पे इतना वाइड है, मैं यहाँ पे इतना नैरो क्यों बना रहा हूँ? बेटा दिखेगा नहीं। अगर बहुत वाइड बना देंगे तो कुछ समझ में नहीं आता। इसको मैंने करंट कर दिया, मतलब ये इस तरीके से है, ठीक है। और इसमें मैं क्या करूँगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ एक रख दूंगा और एक यहाँ रख दूंगा। इससे आपको समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन लेफ्ट राइट मूव कर रहा है, पेंडुलम की तरह, कभी इधर कभी उधर जा रहा है वो, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। नहीं बेटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। इस 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। देखो एक बात समझो, अरे हाँ बेटा एक मिनट बेटा। बेटा बॉन्ड का मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ पे ऊपर एक क्लाउड नीचे एक क्लाउड, नहीं। 2 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 1 बॉन्ड, सिंपल सा मीनिंग है। तो ये दोनों मिलके बेटा एक बॉन्ड हुआ है। क्लाउड बहुत सारे हो सकते हैं, but number of electrons will decide number of bond. 2 electrons means 1 bond, 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 बॉन्ड। तो हम लोग इसको बेटा इस तरीके से भी बनाते हैं। हाँ तो बिल्कुल, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो आपको पूछना होगा बेटा। गजब बेटा, जो चीज मैं लिख रहा हूँ ना उसको आप लोग खुद से लिखते रहा करें बेटा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन का मीनिंग होता है एक बॉन्ड। ये आपको यहाँ पे एक बॉन्ड दिख रहा है, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे एक बॉन्ड दिख रहा है, मतलब इसके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन अंदर आना जाना कर रहा होगा। वो दिख नहीं रहा आपको बट अंदर हो रहा है, ठीक है। वो दिख नहीं रहा बट अंदर हो रहा है, ये मानना होगा। क्लाउड है बेटा, एक्चुअल में ये होता है, एक्चुअल में ऐसा कुछ होगा, ये होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। बट हर बार इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर थोड़ी ना ड्रॉ करेंगे। शॉर्ट में हम लोग ये वाला बना देते हैं सीधा, और थोड़ा डिटेलिंग में ये वाला बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट। बेटा पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय साइडवेज ओवरलैप, ये मीनिंग होता है साइडवेज ओवरलैप। पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय साइडवेज ओवरलैप। हाँ बेटा,
नहीं बेटा, ये थोड़ी ना होता है बेटा, एक्चुअल तो ये है बेटा। अब इतना वाइड बनाएंगे तो दिखेगा थोड़ी ना है। ठीक है, ये देख रहे हो ओवरलैप दिख रहा है आपको, यहाँ पे ओवरलैप किया, यहाँ ओवरलैप किया है। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ पे बेटा देखेंगे जरा ध्यान से, समझेंगे यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे कार्बन और ये दूसरा कार्बन, ठीक है, ये वाला बॉन्ड बनाया हो, देखिए ये वाला बॉन्ड है, ये दिख रहा 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इधर बेटा आपको हाइड्रोजन दिख रहा है। ठीक है, इधर आपको हाइड्रोजन दिख रहा है। अब मैं ये वाला बना रहा हूं केज लाइक स्ट्रक्चर। अब मैं केज लाइक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये केज लाइक स्ट्रक्चर है। फिर एक ऑरेंज वाला मॉलिक्यूल है, ये वाला अब मैं बना रहा हूं। ये देखो कुछ ऐसा है। ग्रीन वाला ग्रीन से साइडवेज ओवरलैप किया है, ग्रीन वाला ग्रीन से साइडवेज ओवरलैप किया है, ऑरेंज वाला ऑरेंज से साइडवेज ओवरलैप किया है। ध्यान से समझेंगे, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन। बेटा ग्रीन के लिए कितने बॉन्ड बनाएंगे, इसको और इसको मिला के कितने बॉन्ड, क्या बेटा 1 बॉन्ड, बहुत बढ़िया। और रेड के लिए 1 बॉन्ड, 1 बॉन्ड, बहुत बढ़िया। तो कार्बन के बीच में बेटा ट्रिपल बॉन्ड है, आप ये बनाएंगे और ये बनाएंगे। ठीक है, चलिए बनाइए। बहुत बढ़िया बेटा। कलर चेंज करके करेंगे, अच्छा है, नहीं अगर है तो कोई उपाय नहीं है बेटा। चलिए नेक्स्ट। ये जो मॉलिक्यूल देख रहे हैं ना बेटा, ये जो मॉलिक्यूल हम लोग अभी ड्रॉ किए हैं, ये मॉलिक्यूल एक्चुअल में इस तरीके से है, सी ट्रिप। हाँ बेटा, ये जो मॉलिक्यूल है बेटा, ये जो अभी अभी ड्रॉ किए, इसको कॉमन नेम है एसिटाइलिन या एसिटिलीन। ये एसिटिलीन कहाँ यूज होता है बेटा, देखेंगे वेल्डिंग के समय 2 सिलेंडर होते हैं, एक में बेटा ऑक्सीजन होता है, दूसरे में एसिटिलीन होता है, दूसरे में एसिटिलीन होता है। ठीक है, दिस गैस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर राइपेनिंग ऑफ फ्रूट्स। ये राइपेनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए भी यूज होता है। ठीक है, तो बस किसका बेटा, क्या कर रहा है, देखो ये बेटा, ये आदमी क्या कर रहा है, इसके बाल नहीं है, क्या कर रहा है, कटिंग वेल्डिंग कर रहा है बेटा। कटिंग के लिए भी यूज हो सकता है, बट वेल्डिंग के लिए भी यूज होता है। ठीक है, गैस वेल्डिंग देखे तो रोड के साइड होता रहता है ना, रिपेयरिंग का काम, वही है बेटा एसिटिलीन। ठीक है, 2 सिलेंडर होते हैं हमेशा। चलिए नेक्स्ट। ये बेटा एसिटिलीन मॉलिक्यूल एक्चुअल में है, जो अभी हम लोग बनाए ना इस तरीके से, अभी इस तरीके से हम लोग बनाए थे। एक आपका ये था, एक ये था, तो ये आपका केज लाइक स्ट्रक्चर हो गया, और ये आपका रेड वाला स्ट्रक्चर हो गया। अब देख रहे हो, ऐसा बनाने में थोड़ा, अभी ये थोड़ी ना बना पाएंगे हम लोग बेटा, इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे तो मतलब ये ड्राइंग क्लास तो नहीं है ना, इसीलिए हम लोग सबसे आसान तरीका ये बना देते हैं, हो गया। पढ़ा लिखा आदमी को पता है,
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये जो मॉलिक्यूल है बेटा, ये एक्चुअल में ये मॉलिक्यूल है, पढ़े लिखे लोग को पता है कि बुक में अगर ये ड्रॉ किया हुआ है मतलब ये मॉलिक्यूल है, आपको इमेजिन करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब लिखेंगे बेटा रोटेशन अबाउट पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। रोटेशन अबाउट पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। ये जो बेटा बॉन्ड बना है ना बेटा, ये जो ऊपर नीचे बनता है, दोज आर नोन एज पाई बॉन्ड। अभी समझाएंगे इसमें। रोटेशन अबाउट पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। अब जरा ध्यान से समझिएगा। ये मॉलिक्यूल मैं ड्रॉ किया हूं बगल में, ठीक है बेटा। ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये सिग्मा बॉन्ड है। इस बॉन्ड को हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोलते, इस बॉन्ड को हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोलते, इस बॉन्ड को हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोलते, इस बॉन्ड को हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। ये पहला वाला बॉन्ड सिग्मा होगा, दूसरा वाला बॉन्ड पाई होगा। मतलब ऐसे समझिए, दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है ऑलवेज, कोई एक्सेप्शन नहीं है। द फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन एनी टू एटम इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। The first bond between any two atom is always sigma bond. The second bond is pi bond. The third bond will be pi bond. The fourth bond will be pi bond. फोर्थ बनता नहीं है, बट दो एटम के बीच में सिर्फ एक ही सिग्मा बनेगा। पर आप बोलेंगे सर यहाँ तो कार्बन ने तो इतने सारे सिग्मा बना रखे हैं। अरे इसके और इसके बीच में एक ही सिग्मा बनेगा। ये कार्बन इसके साथ एक सिग्मा बनाया है, ये कर सकता है, बट दो एटम के बीच में, इसके और इसके बीच में एक सिग्मा, इसके और इसके बीच में एक सिग्मा, बिटवीन एनी टू एटम्स ओनली वन सिग्मा बॉन्ड। इसमें किसी को डाउट? नहीं बना सकता, एक ही सिग्मा बनाएगा, एक ही बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा यहां देख लीजिए HCN, ध्यान से समझेंगे। ये पहला बॉन्ड है सिग्मा, ये दूसरा बॉन्ड है पाई, ये तीसरा बॉन्ड है फिर से पाई। ये क्या होगा बेटा? सिग्मा। फर्स्ट बॉन्ड है ना कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, ये सिग्मा होगा। समझ में आया? चलिए, क्या बेटा? बेटा नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। कन्वेंशन है नीचे वाले को फर्स्ट लेते हैं, आप ऊपर वाले को भी फर्स्ट मान सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये एक मॉलिक्यूल है, समझिएगा, ये इस तरीके का मॉलिक्यूल है। कार्बन कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, और कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं बेटा, बना लीजिए। ये वाला मॉलिक्यूल है। करेंगे बेटा नोमेनक्लेचर, अभी के लिए लिखना है तो लिख लीजिए। प्रोपाइन कहते हैं इसको, प्रोपाइन। हो गया, चलिए अब ध्यान से देखेंगे। इसमें नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट कीजिए, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट कीजिए। बहुत बढ़िया बेटा। 6 सिग्मा प्लस 2 पाई, 6 सिग्मा एंड 2 पाई, कुछ भी कर सकते। ठीक है, हो गया। चलिए आप समझेंगे बात को बेटा।
एक्चुअल मॉलिक्यूल HCQ का ये है, दिस इज द एक्चुअल मॉलिक्यूल। बट बेटा फिर से अगर बोले ये ड्राइंग का क्लास नहीं है तो हम लोग ये मॉलिक्यूल नहीं बनाएंगे, इसको बनाने में बेटा सुबह से लेकर शाम हो जाएगा। हम लोग केमिस्ट्री में बेटा कॉपी में ये वाला बनाएंगे, बुक में ये वाला ड्रॉ किया रहेगा, बट आपको बेटा समझना है ये वाला का मतलब ये वाला होता है। क्लियर है ये? समझ में? HCQ बेटा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, अभी चल रहा था ना ये न्यूज में। हाँ बिल्कुल ड्रॉ करेंगे, कौन सा ड्रॉ करेंगे बेटा आप? हाँ अभी आ रहे बेटा, एक एक करके बताते हैं, समझेंगे बात को। बेटा इसमें देखिए कि कार्बन एटम लिखा हुआ नहीं है, इमेजिन करना है आपको। गायब हो गया ना? नहीं वापस आ गया। एक मिनट। हाँ ये जो है बेटा ये सारे कार्बन एटम अभी आएंगे बताएंगे, आपको समझना है कि ये वाला का मतलब ये वाला था, हम लोग देखेंगे कि इसका से ये कैसे बना। ठीक है चलिए पहला लिखेंगे बेटा, टॉपिक लिखे स्ट्रक्चर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर। क्या बेटा? नहीं नहीं वो नहीं बनाना है बेटा, अभी अभी आगे लिखिए स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन। चलिए या रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है लिखेंगे a covalent bond, a covalent bond is denoted by a line या represented by a line, is represented by a line A B। ठीक है कोवेलेंट बॉन्ड, जब भी कोवेलेंट बॉन्ड होगा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर। आपको बेटा यहां पर ये मान लेना है कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, आपस में शेयर कर रखा होगा। ये ई दिया हुआ नहीं होगा, ये आपको समझ जाना है कि वहां पे ई है। ये आपको समझ जाना है कि एक लाइन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, ये आपको समझ जाना है। तो अगर मुझे बेटा ये वाला मॉलिक्यूल ड्रॉ करने बोला जाए, अगर मुझे ये वाला मॉलिक्यूल ड्रॉ करने बोला जाए तो देखो बेटा एक लाइन से हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन डिनोट करने वाले हैं और ये आपका मीथेन बन गया। ठीक है इसको मैं इस तरीके से बनाऊंगा, कार्बन हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। देखो मैंने इलेक्ट्रॉन ड्रॉ नहीं किया है बेटा, मैंने सिर्फ लाइन ड्रॉ किया है। इलेक्ट्रॉन वहां पर है ये आपको समझ जाना है, ड्रॉ नहीं किया रहेगा, ये आपको समझ जाना है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन है। किसी को डाउट बेटा इसमें? चलिए चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं। अब वही चीज दोबारा रिपीट हो रहा है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 बॉन्ड। ठीक है तो वही चीज बता रहे हैं कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड C है। ठीक है ये याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट, ये भी वही चीज़ है बता चुके हैं। चलिए इसको जल्दी से आप लोग बना लीजिएगा, नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट कीजिएगा। इस मॉलिक्यूल को जल्दी से बना लीजिए, नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करिए। ठीक है देख लेते हैं, इसको इस तरीके से बना सकते हैं हम लोग, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन।
ठीक है, 8 सिग्मा एंड 1 पाई हो गया। चल नेक्स्ट। अब देखो बेटा, अभी तक हम लोग ऐसा बना रहे थे, सारा सारा बॉन्ड दिखा रहे थे। अब देखो इसमें क्या है, इसमें अगर मुझे बना, अरे यार, चलिए यहां देखेंगे बेटा, ये आपका कार्बन एटम है, तो मैं ये कार्बन बनाऊंगा, फिर एक और कार्बन, फिर एक और कार्बन। कितने कार्बन है बेटा, काउंट कीजिएगा, 8 कार्बन है। ठीक है, ये 8 कार्बन। फिर सबके पास बेटा 3 हाइड्रोजन है, बनाइएगा सबको ही। ठीक है, सबको को बनाना है, बना लेंगे। ठीक है, अच्छा बताइए, 7 होगा बेटा, 1 2 3। चलिए सबको ही बनाएंगे इसको। चलिए ये बना बेटा इतना लंबा चौड़ा मॉलिक्यूल। अब देखो इसको हम लोग, ऑक्टेन है बेटा, ऑक्टेन। चलिए इसको करेंगे बेटा, नोमेनक्लेचर करेंगे, अभी समझे बात बेटा। इसको बेटा बनाने में समय लगा, इसको देखो मैं शॉर्ट में कैसे बनाऊंगा। इसको मैं लिखूंगा CH3 CH2। देखो क्या कुछ नहीं है, ये 3 CH3 था ना बेटा, एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन एक साथ बना दिए, फिर इसको CH2 बना दिए, फिर इसको फिर से मैं CH2 बना दूंगा, उसी के नीचे आप लोग बनाएंगे CH2, फिर एक और CH2, फिर एक और CH2, ये CH2 CH2 और लास्ट में CH3। ये एक स्ट्रक्चर हो गया। हम लोग क्या कर रहे हैं, जल्दी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे मॉलिक्यूल बनाने पड़ेंगे। अगर सबको इतना डिटेल में बनाने लगे तो फिर टाइम सारा उसी में चला जाएगा। देखो इसको बना लिया होगा आपने, इसको भी बना लिया होगा। अब हम लोग और छोटा करेंगे, और छोटा करेंगे, CH3 CH2 CH3। अब आप बोलेंगे सर बाकी CH2 कहाँ गए, इसको ब्रैकेट में डालेंगे। देखो 1 2, ये CH3 CH2 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 और CH2 कितने हो गए, 6 हो गए, बना दिए। ब्रैकेट में 6 कर दिए, मतलब 6 बार रिपीट करना है। ब्रैकेट में बना दिए, मतलब वी हैव टू रिपीट द सेम CH2 6 टाइम्स। क्या बेटा, नहीं ऐसा नहीं कर सकते बेटा। सी, एक लेफ्ट में एक राइट में है ना, समझे। चलिए इसको बोला जाता है एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर। इसको बोला जाएगा वेरी कंडेंस स्ट्रक्चर, वेरी हो सकता है, और ये कहा जाएगा कंडेंस्ड। ठीक है, अब ये सब कभी एग्जाम में नहीं आएगा कि कंडेंस क्या होता है, वेरी कंडेंस क्या होता है, ये बस समझने के लिए आपको। ठीक है, ये सब किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको, ये बस आपको समझाने के लिए कि कंडेंस क्या होगा, एक्सपैंडेड क्या होगा। सब एक ही मॉलिक्यूल है बेटा। आप देखो तो ये जो A, ये B, ये C और D, ये सब एक ही चीज है, बस बनाने का तरीका अलग है। ठीक है, बनाने का तरीका अलग है। फॉर एग्जाम्पल ये एक आदमी होता है, अब एक नाक आँख सब बनाने के बाद बेटा एक और आदमी बनेगा। देखिए ये भी एक आदमी है ना, नहीं ये मैंने बनाए। हाँ आप समझ रहे हैं, आपको बड़ा पेंटर बनाएगा तो अच्छे से बनाएगा। ठीक है, चीज तो एक ही है ना, समझ में आया। चलिए अब देखो हम लोग थोड़ा और जल्दी बनाएंगे, इसमें भी हम लोग को प्रॉब्लम हुआ, इसमें भी टाइम लगा। तो देखो अब क्या करेंगे, अब हम लोग ये करेंगे,
ये सेम चीज है बेटा। आप बोलेंगे सर बेटा, अब आप बोलेंगे सर इसमें तो हाइड्रोजन बनाया नहीं आपने। बेटा कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं? 4 बॉन्ड होते हैं। तो पढ़े लिखे लोगों को मालूम है कि यहाँ पर कार्बन के 2 हाइड्रोजन होंगे। हम लोग ड्रॉ नहीं किए हैं, बट किसी को पता करना है तो वो पता करके ड्रॉ कर लेगा ना, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। सुनिए वही बता रहा हूं, हम लोग किसको इग्नोर करेंगे? वी विल इग्नोर ओनली हाइड्रोजन विच आर कनेक्टेड टू कार्बन। हाइड्रोजन कनेक्टेड विथ अदर एटम्स विल नॉट बी इग्नोर्ड। हाइड्रोजन कनेक्टेड विथ अदर एटम्स विल नॉट बी इग्नोर्ड। हाइड्रोजन विच आर कनेक्टेड टू कार्बन एटम दे विल बी इग्नोर्ड। और नॉर्मली हम लोग क्या बेटा? हाँ बेटा इट कैन बी इग्नोर, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। तो इस मॉलिक्यूल को बेटा हम लोग इस तरीके से एक बना सकते थे, ये बना सकते थे, ठीक है। 4 हो गए, 4 हो गए। अब इससे भी थोड़ा आसानी हम लोग करेंगे, इससे भी थोड़ा इजियर करेंगे। बहुत बढ़िया हो गया बेटा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 लीजिए हो गया। ये जितना एज है ना बेटा, ये कार्बन है, 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 ये कार्बन। पढ़े लिखे लोग को पता है वो सारा कार्बन है। अब देखो बड़ा जल्दी बन गया, तुरंत बन गया। बस आपको काउंट याद रखना है, 2 3 4 5 6 7 8 बन गया। समझ में आया? ठीक है, चलिए देखो ये इतना बड़ा मॉलिक्यूल है ना। इसको देखो कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। देखो ये बेटा इस तरीके से जल्दी से बना सकते हैं, ठीक है। यहां पर ये सही है। एक और तरीका था, क्या? वो लाइन वाला, तो लाइन वाले में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। देखिए इसमें ज़्यादा समय लग गया। बेटा कौन है? या तो आईपीएल देखिए या तो पढ़ाई कीजिए। चलिए तो बेटा देख लो ना, यहाँ पे ये वाला बनाएंगे, जल्दी बन गया। ये भी बना सकते हैं, गलत नहीं है, बट ये बनाएंगे, आसान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो आपको डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसको बेटा हम लोग देखो इसी तरीके से बनाएंगे, CH3 CH3। क्यों? अगर हम लोग बॉन्ड लाइन से बनाएंगे बेटा तो ऐसे बनाएंगे। अब ये क्या मतलब है? इसका कोई मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये यहाँ पर ये होगा। अब जो छोटे मॉलिक्यूल हो गए उसमें बेटा आप वो लेजीनेस नहीं करना है कि छोटे मॉलिक्यूल में भी दिमाग लगा रहे हो। अब ये बन गया, बना लीजिए जल्दी से, ठीक है सबको। हाँ तो फिर हाँ बहुत सही, मीथेन में 1 पॉइंट हो जाएगा, तो वैसा ही पॉइंट आपको एग्जाम में मिल जाएगा, तो वो नहीं करना, ठीक है। चलिए नहीं बनाइए बेटा, अब गलत नहीं होगा बेटा, बट समझने में बड़ा डिफिकल्टी नहीं होगा। क्या बनाया ये, समझ रहे? उससे बेटर नहीं है कि ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है कि हाँ ये इथानॉल है। इसे देखो कितना अच्छा लग रहा है समझने में, ठीक है। हाँ बेटा
हाँ लिख सकते हैं बेटा, बट C2H6 से इंफॉर्मेशन कम है बेटा, ये वाला ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला डिस्कस करेंगे उसको। चलिए नेक्स्ट, इसको बनाएंगे बेटा बॉन्ड लाइन से ऐसे, एक ये बन सकता है, फिर एक ये बना लीजिए, सारा बनाइए ठीक है, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, सारा बनाइए, दोनों बनाएंगे, एक ये बन सकता और एक ये बन सकता। अरे नाम नोमेनक्लेचर बता देंगे बेटा, अभी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखिए ना। नहीं बेटा, क्या बोले, कन्वेंशन ये है सिर्फ कार्बन का इग्नोर करना है, हाइड्रोजन बाकी एटम का इग्नोर नहीं करेंगे। अरे लेजीनेस का मतलब ये थोड़ी ना है कि मतलब एकदम लेजी हो जाना है। क्या बेटा, कैसे हो बेटा, CH3 है देखिए, ये CH3 है ना, तो बनाए तो वही तो बनाए हैं, ये वाला समझ में आया, और ये वाला तो बेटा एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन हो गया। हो गया बेटा, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक एक करके समझ में आ जाएगा, चलिए बेटा इसको बनाइए। हाँ एक ये बनेगा बेटा, CH2 बॉन्ड CH2, CH2 बॉन्ड CH2, एक ये बना, और एक सिंपली ये बना दीजिए ट्राइंगल, हो गया। समझ में आया बेटा लाइन वाला कैसे बन रहा है, सारा का ठीक है, एक ये बनेगा, दोनों बनाएंगे ठीक है जल्दी से। चलिए, अरे अभी अभी देखो बेटा, ये वाला एक कार्बन है देखो बेटा, हर कार्बन के लिए ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है बेटा, यही तो चीज को इसमें ट्रांसफर कर दीजिए ना, बन तो गया, फिर इसको इसमें नहीं बेटा, बोले तो हाइड्रोजन को इग्नोर कर देते बेटा, वी कैन इग्नोर द हाइड्रोजन बिलोंगिंग टू कार्बन। हाँ हाँ बेटा, चलिए नेक्स्ट, ये देखेंगे बेटा, ये 6 कार्बन एटम है। अच्छा इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा बेटा, बट ये रोटेट करके दिखाना जरूरी था। हाँ बेटा ये हेक्सागन बनेगा, देखो बनेगा CH2, 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 CH2 एंड CH2, एक ये बना, और शॉर्ट में बनाना है तो ये बना दीजिए, हो गया। दोनों मॉलिक्यूल ड्रॉ करेंगे, बहुत बढ़िया बेटा। हेक्सागन को स्ट्रेट चेन है मतलब ये,
हाँ बेटा, इसको स्टेट चेन में मतलब, हाँ हाँ बेटा, वो कर ही सकते हो। चलिए ये ध्यान से देखेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड है बेटा, तो ये इस तरीके से बनेगा सी। देखिए अब इसको हम लोग जनरली इसी तरीके से बनाते हैं, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन को ऐसे ही बनाइएगा तो अच्छा लगता है। ठीक है, और दूसरा ये वाला एक बनेगा। ठीक है, इसका नाम लिख सकते हैं बेंजीन, जेड है वो। ठीक है, बेंजीन। बेंजीन एज सच यूज नहीं होगा बेटा डेली लाइफ में, क्योंकि बेंजीन इज हार्मफुल। ठीक है, इसका मतलब डेरिवेटिव यूज होता है। हाँ बिल्कुल, ये पेंट्स वगैरह में यूज होता है, बट इसको यूज नहीं करना चाहिए। बेंजीन हार्मफुल है। फिनॉल वगैरह इसी का डेरिवेटिव होता है, फिनाइल में जो होता है बाथरूम क्लीनर में। क्या बेटा? इसमें बेंजीन नहीं होता है, थोड़ा बहुत तो रहेगा ही रहेगा बेटा, माइन्यूट अमाउंट रहता होगा, बट उसमें वैसा कोई डोमिनेंट अमाउंट नहीं है। चलिए ये मॉलिक्यूल बनाएंगे बेटा। क्या बेटा? हाँ, बेंजीन का C6H6 होगा। अच्छा, इसको ना बेटा थोड़ा वैसे बनाइए, प्रॉपर, मतलब 3D स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको ऐसे ही बना सकते हैं। कराएंगे बेटा, सारा नोमेनक्लेचर कराएंगे। चलिए नेक्स्ट। ये कंप्यूटर रीस्टार्ट करते हैं ना तो ये ब्लिंक नहीं करता। चलिए कोई ना, अगले दिन ब्लिंक नहीं करेगा। चलिए ये मॉलिक्यूल, नहीं कर सकते बेटा, कैसे चेंज करेंगे? मॉलिक्यूल अलग नहीं हो जाएगा? दे विल हैव डिफरेंट मॉलिक्यूल। चलिए ये मॉलिक्यूल अभी देखिए बनाए थे, देखे थे, बनाए नहीं थे। हाँ बहुत बढ़िया, ये नैप्थलीन है। हाँ बहुत बढ़िया, ये नैप्थलीन है। देखो अब इसको ऐसे ही बना लेंगे, सारा कार्बन वार्बन नहीं बनाने जाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन बनाना किसमें बेटा? हाँ नैप्थलीन हेक्सागोनल ही होगा बेटा, नैप्थलीन है ये, नैप्थलीन। हो गया। दिख रहा है मॉलिक्यूल प्लानर है। ठीक है, दिस इज अ फ्लैट मॉलिक्यूल। चलिए नेक्स्ट, इसको अब देखो कैसे बनाएंगे।
ये रहा बनाने का तरीका। देखो O है ना, मैं यहाँ पे सीधा इस तरीके से भी H बना सकता था, और ये N है, ये डबल बॉन्ड O है। ध्यान से देखिएगा, ये देखो ये ग्रे बॉन्ड है, ये थोड़ा अलग टाइप का बॉन्ड होता है, इसको एरो देके बनाया जाता है। These type of bond are actually known as coordinate bond. They are brother of covalent bond. कोवेलेंट बॉन्ड का भाई है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का भाई है। हाँ बेटा, इसमें एरो देना है आपको। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। बिल्कुल एक साथ लिख सकते, ऐसा भी बना सकते हैं। देखो बहुत लोग ऐसे बना देंगे। हाँ चलिए, बहुत लोग इसको NO2 लिख देते हैं और इसको OH लिख देते हैं, ये भी सही है। बट इसमें बेटा इंफॉर्मेशन कम है और इसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, तो बेसिकली सेकंड वाले में इंफॉर्मेशन का लॉस हो गया है। ठीक है, इंफॉर्मेशन लॉस है। ठीक है, चल नेक्स्ट। अब देखो हम लोग 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, लिखेंगे 3 डायमेंशनल 3D। देखो 3D का मतलब क्या होगा कि हम लोग जैसा मॉलिक्यूल इसमें दिख रहा है वैसा बनाएंगे। अब इसमें क्या दिखा, ये कार्बन दिखा, ये हाइड्रोजन दिखा, ये हाइड्रोजन दिखा, बट बेटा ये हाइड्रोजन देखो बाहर आ रहा है और ये हाइड्रोजन अंदर चला गया। तो जो बाहर आने वाला हाइड्रोजन होता है उसको हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, सॉलिड लाइन, सॉलिड वेज, सॉलिड वेज से बाहर आने वाला। जो अंदर जाने वाला होता है उसको हम लोग डैश से डिनोट करते हैं, और ये बड़ा होता जाता है, ये आया अंदर वाला हाइड्रोजन है। समझ में आया? दिस इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, कमिंग आउट, कमिंग आउट एंड गोइंग बिहाइंड। कॉपी के अंदर जा रहा है और ये कॉपी जो आपका जो पेपर है उससे बाहर आ रहा है, ये 3 डायमेंशनल माना जाएगा। बन गया तो बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, इसको देखो हम लोग 3 डायमेंशनल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे समझो। हो गया? चलिए ध्यान से देखेंगे इसमें, ये वाला और ये वाला, ये दोनों बेटा पेपर के ऊपर दिख रहा है, दिख रहा है ना, पेपर के ऊपर है। हाँ बहुत बढ़िया। और ये वाला बेटा बाहर है और ये वाला बाहर है, तो ये बाहर आ गया। ठीक है, ये वेज टाइप बनेगा और ये अंदर चला गया, ये बाहर आ गया और ये अंदर चला गया। ठीक है, ये बन गया। सॉलिड, हाँ बेटा इसको सॉलिड बोलते हैं हम लोग। हल्का सा भी कर देने से समझ में आ जाता है, ये सॉलिड हो गया।
ये इथेन है बेटा, देखो इसको इस तरीके से भी बना सकते थे CH3 बट ये 2 डायमेंशनल माना जाएगा, दिस इज 2 डायमेंशनल। इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है कौन बाहर है कौन अंदर है, इसमें क्लियर इंफॉर्मेशन है कौन बाहर है और कौन अंदर है। चलिए हो गया। चलिए देखिए सेम मॉलिक्यूल इथेन है बट इसमें बेटा इस बार थोड़ा अंतर है। ये बहुत बढ़िया बेटा, रोटेट करा दिया गया है, बहुत बढ़िया, अराउंड सिग्मा 1 बन गया, ये इथेन बन गया। अरे अभी बेटा ये तो आप ऑर्गेनिक का स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, आप जब समझ रहे हैं कॉलेज में ऑर्गेनिक वगैरह पढ़ेंगे तो 3D बनाना पड़ेगा ना बेटा। मॉलिक्यूल में बहुत सारा होता है बेटा, मॉलिक्यूल जो होगा कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल होगा, उसमें ऊपर से एटम है नीचे से एटम है, मैटर करता है। दवाई वगैरह, दवाई कैसे बनता है बेटा, मेडिसिन वगैरह मॉलिक्यूल ही तो है। ऊपर से आएगा हाइड, मतलब एक अंदर बाहर से बेटा उसका एक्टिविटी में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। चलिए ये मॉलिक्यूल देखिए, अब ये मॉलिक्यूल बेटा देख रहे ना, ये वाला अलग है मॉलिक्यूल, इसके दो तरीके से बन सकते थे। ठीक है, ये आप इस तरीके से बना लेते हैं। ये देखो 3D दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है। पीछे के दो हाइड्रोजन नहीं बनाए हैं, ठीक है, कोई नया वहाँ कोई इन्फॉर्मेशन का लॉस नहीं हुआ है। बेटा देखो हम लोग इस मॉलिक्यूल बनाते हैं ना, तो हम लोग ये सोच के बनाते हैं कि इन्फॉर्मेशन का लॉस ना हो, जो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है वो ड्राइंग के समय दिखे, वो लूज ना हो जाए क्रूशियल इन्फॉर्मेशन। अब जैसे यहाँ पे पीछे वाले दो हाइड्रोजन है, दोनों तो बेटा हाइड्रोजन ही है ना, तो ऊपर बना के फायदा क्या, अब ये ऊपर भी हाइड्रोजन नीचे भी हाइड्रोजन बनाकर फायदा क्या, वो तो बट ऑब्वियस है कि दोनों। क्या बेटा, नहीं बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत बनाइए, इसको मत बनाइए। दिखा सकते थे बट ठीक है, उसका भी बेटा, इसका यहाँ पे ये मतलब नहीं चल रहा है कि एक ऊपर है एक नीचे है। देखो इसका मतलब तो यही लग रहा है ना बेटा, समझ रहे, ये मॉलिक्यूल जिसको ड्रॉ करके दिया जाएगा ना, वो समझ जाएगा कि इसी मॉलिक्यूल की बात हो रही है। तो इसमें तो दिख रहा है ना बेटा, ये ऊपर है और ये नीचे है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। इसमें वो शेडिंग करना नहीं है बेटा, करना भी रहेगा तो आप इसको ये इस तरीके से कीजिएगा, ऊपर वाले को आप सॉलिड बना दीजिए, नीचे वाले को आप डैश कर दीजिए, ठीक है, ये कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर बनाएंगे बेटा दोनों मॉलिक्यूल, बेटा आपको लग रहा है सेम, सेम नहीं है बेटा, ध्यान से देखिए। हाँ हाँ, देख रहे BR और H का बेटा पोजीशन इंटरचेंज है। अभी कोई पूछ रहा था ना क्यों बना रहे हैं 3D, देखो बेटा यहाँ पर ये मॉलिक्यूल अगर A है तो ये मॉलिक्यूल B है, एंड A एंड B आर डिफरेंट मॉलिक्यूल। समझ में आया, तो अगर आप ये वाला बना के भेज देंगे ना किसी को, तो बड़ा कंफ्यूजन है कि आपने क्या बनाया है, A है या B है, बताइए तो, ये कुछ मालूम चलेगा, B कुछ नहीं है बेटा, कुछ पता नहीं चलेगा, किसी को A लगेगा किसी को B लगेगा, ठीक है। तो इस वाले मॉलिक्यूल को आप इस तरीके से बनाएंगे,
ठीक है, ये बनेगा। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन। तो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तो आप क्या बेटा, आपको वो भेजना होगा क्या अलग से? अच्छा, हाँ हाँ, सही बेटा, सही 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 सही। बेटा मैंने बोला ना, जो मैं बना रहा हूँ वो आप भी बना लीजिएगा। आप लोग तो गजब कर रहे हैं। ठीक है, दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट है, याद रखिएगा। दे आर नॉट सेम मॉलिक्यूल, दे आर डिफरेंट मॉलिक्यूल। बिल्कुल, इनका नाम डिफर करेगा थोड़ा सा। अरे बेटा नोमेनक्लेचर कराएंगे बेटा, तब बताएंगे। अभी मॉलिक्यूल बनाना सीखिए ना। चलिए, ठीक है। ये तो ठीक है, ये तो रिपीट कर गया ना, ठीक है। हाँ बेटा देखो, एक्चुअल में मॉलिक्यूल ये होता है, दिस इज एक्चुअल मॉलिक्यूल। ये मीथेन है, पता है, लिंक कर रहा है, बट कोई उपाय नहीं बेटा। दिस इज मीथेन, देख रहे हो, ये समझ में नहीं आएगा अगर आप इसको बनाएंगे। देखो ये इस तरीके से, कार्बन फिर 4 हाइड्रोजन, हाँ ये हाइड्रोजन। हाँ तो अब देखो, एक्चुअल में तो ये है, दिस इज एक्चुअल, बट हम लोग बना नहीं पाते ऐसा, क्यों, कुछ समझ में नहीं आएगा। रियल लाइफ में मॉलिक्यूल ये होता है, दिस इज रियल मॉलिक्यूल, रियल। बट हम लोग मीथेन को ऐसे बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि बेटा दिखता है इसी में, इसमें तो कुछ दिखा ही नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, इसको ड्रॉ नहीं करना है, ये इथेन है बेटा। ठीक है, ये भी एक्चुअल रियल मॉलिक्यूल है, दिस इज रियल मॉलिक्यूल। हाँ, ओवरलैप होता है बेटा, ओवरलैप होगा। समझ में आया? ठीक है, चलिए। हाँ बेटा, बेटा ये तो अलग है, एक्सरे स्टडी वगैरह किया जाता है तब मालूम चलता है। हाँ उसीलिए तो बेटा, बिल्कुल इसमें बेटा इंफॉर्मेशन कंप्लीट दिखता नहीं है ना। इसको आप अगर पेपर पे बनाएंगे तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दिख रहा है। हाँ तो इसलिए हम लोग इससे नहीं बनाते, हम लोग इस तरीके से बना लेते हैं। फिर आपको इंफॉर्मेशन का लॉस नहीं होना चाहिए। अब इसमें बताइए ना बच्चे, क्या समझ में आएगा? मैं ये आपको दिखाऊंगा तो कुछ समझ में आता है, नहीं आता है। अब पीछे हाइड्रोजन होगा, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, ठीक? इस कारण से। चलिए ठीक है, ठीक है बेटा, चलिए हो गया, ये हो गया बेटा। हाँ ये सब आइस नोमेनक्लेचर स्टार्ट होगा तब होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्लास में बेटा क्लासिफिकेशन होगा। क्लासिफिकेशन किसी का हो, किसी एक में हो रखा है, कुछ लोगों का हो रखा है। हाँ क्लासिफिकेशन होगा उसके बाद। अच्छा नेक्स्ट क्लास में ना बेटा नोमेनक्लेचर कर लेंगे, ठीक है। होमोलोगस सीरीज बोले थे ना? हाँ अच्छा, क्लासिफिकेशन तो छोटा ही है, उसके बाद होमोलोगस सीरीज है। ठीक है बेटा, देखते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है बेटा, बाय बेटा। ओके।
बेटा, बाय बेटा। ओके ओके, बाय बेटा। ओके बेटा।